बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, welcome back. You are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we have a beautiful poem. You can see God made the country, and it is prescribed for class 10th. And here you can see class 10th Hafania Dum, and here you have the book Panorama Part 2. It is composed and written by William Cowper. Someone said Cowper, that means Cowper. It is the right. And birth 1731 and death 1800, right? 1800. And first of all, I would like, before starting the chapter, first of all, I would like to thank to our chairman Qayyum Ansari Sahab, who made conduct our classes, online classes, learn at home. It's a beautiful and a great step towards education. So go ahead, and before starting our poem, we need to know that here some words meaning related to your poem. Forecast, that means foretaste, that means maza, and chashni, you can see the foretaste, maza or chashni. And the next word, taste, here with e missing, T-S-T, T-A-S-T, taste. And paradox, that means ulti baat, and exhort, the nasihat karna, and moonbeam, that means चांद की रात, here the new and modern word moonlight, eclipse ग्रहण, and bitter karwa, and fatigue थकावट. You can see here your book Panorama Part 2 and your poem, the poetry section, the first, and the God Made the Country. It is composed by William Cowper, and birth 1731 and death 1800. So, dear student, let's try first know about author. That means poet. Who is poet? And it is very useful to us, to you, when you went to take your exam. That time maybe ask some questions in objective type questions, subjective type question related to poet and related to author or poet or summary part of this poem or lesson, and then after solve the questions and answer. So let's try to know it's about poet. That means William Cowper may be said to be giving in his poem a foretaste of the poetry of Wordsworth. ये कहते हैं कि ये जो विलियम कॉपर है, इनकी पोएम में एक और राइटर हैं और एक कंपोजर है जो वर्ड्सवर्थ हैं. उनकी जो भाव है, उनकी जो एहसास है इनकी पोएमों में दिखती है, जो उनकी पोएम में हुआ करती थी. वो कंपेयर करते हैं कि उनकी पोएम की तरह मेरा भी पोएम है. इनकी पोएम मतलब विलियम कॉपर की पोएम में वर्ड्सवर्थ की एहसासें उसकी दिखती हैं. देयर इज इन हिज वर्ड्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ. और ये जो रूरल लाइफ यानी बिहार, गांव देहात से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है. और ये जो पोएम है हमारी बेसिकली गॉड मेड द कंट्री. हेयर कंट्री मीन्स कंट्री साइड, मतलब देहात. ये बेसिकली कंट्री और टाउन को एक कंपेयर करके लिखे हैं कि देहात में, गाँवों में क्या हमें फैसिलिटी मिलती है, क्या हमें होता है, उससे रिलेटेड. इसलिए बार बार जिक्र करते हैं रूरल लाइफ की. द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप. Like Wordsworth, again he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issue of his time. अपने ज़माने में जो उनके गाँव में, उनके जहाँ पे वो रहते थे कंट्री साइड में, उसको बताने में कोई हेजिटेट, कोई भी शर्माना, कोई भी उसको तकलीफ नहीं होती थी. वो बेबाक अंदाज में बताया करते थे, कट टू कट एंड क्लियर कट अंदाज में कि क्या गांव की फैसिलिटी है, क्या कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं उनकी फ़िज़ाओं में वो जो पेड़ पौधे होते हैं, चिड़ियों की आवाज़ होती है, वो चीज़ सुनने को मिलता है. शहरों के कंपेयर में क्या दोनों में डिफरेंस है, और वो चीज़ आगे बोलते हैं. इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट who lived in cities or state capital have written powerfully about the beauty of the rural life. That means कि रूरल लाइफ को ज़्यादातर जिक्र किए हैं, रूरल लाइफ की क्या खूबी है. तो आगे थोड़ा सा देखते हैं कि Cowper's poem is a classical example of this kind of writing. The first line of the poem, God made the country and man made the town. God made the country, that means खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये एक देहात को बनाया. कंट्री दैट मीन्स कंट्री साइड.
कि कंट्री को बनाए, कोई देश बनाया, कोई देहात जो रूरल एरिया उसको बनाया, उसके बाद आर्टिफिशियली इंसान डेवलप किया मतलब दैट मीन्स कि इंडस्ट्री डाला, एजुकेशन कॉलेजेस डाले, इस टाइप को जो फाउंडेशन है इस्टेब्लिश किया, उसके बाद वहाँ एजुकेशन बढ़ने लगी, तब फिर इंसान क्या है आर्टिफिशियली ग्रोथ करने लगे, डेवलप करने लगे, इस टाइप के सेंस के। पहले तो ये खुदा ने बनाया, फिर खुदा की बनाई चीज़ में इंसान उस पर डेवलप करने लगे ग्रेजुअली। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं, truly such of the creation of the countryside and the evaluation of town being created in a natural way, village possess a perfection that towns and cities can never have। ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ परफेक्शन और अच्छाई और गांव की मज़ा है वो बोलते हैं शहरों में वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा साइनिसिज्म दैट मीन्स के सेल्फनेस पाया जाता है शहरों में, गांव में वैसे नहीं होते हैं। गांव एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, ये किसको बताते हुए एड्रेस करते हैं, टाउन ड्वेलर्स को एड्रेस कर रहे, संबोधन कर रहे हैं कि टाउन ड्वेलर शहर में, शहरी जो शहर में रहते हैं। द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ एंड एक्सॉर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी। ये बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल लग्जरी है जो इंसान की बनाई हुई, जैसे एसी है, उस चीज़ का हम लोग मज़ा लेते हैं, और गांव में जो ठंडी ठंडी वो फिज़ा हवा आती है नेचुरली, उस चीज़ का दोनों में यही डिफरेंस करते हैं कि वहाँ और यहाँ में यही डिफरेंस है। एंड कम्फर्ट टू द सिंपल बट इंड्योरिंग प्लेजर ऑफ अ विलेज, बोलते हैं कि जो खुशी होती है गाँव में वो चीज़ शहरों में नहीं। तो लेट्स स्टार्ट टू आवर पोएम। सो देखते हैं, क्योंकि ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, गांव और शहर को ये कंपेयर करके बताते हैं। और गांव में थोड़ा सा कंट्री साइड में ज़्यादा फोकस किया गया इस पोएम पे। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। खुदा ने देहात को बनाया, वो जगह बनाई, एक दुनिया बनाई, फिर आदमी धीरे धीरे आर्टिफिशियली डेवलप किए, वो उनको ग्रेजुअली उनमें इंडस्ट्री डाले, स्कूल कॉलेजेस लाए, बहुत सारी खेती ये करते हुए हर चीज़ उस पर शामिल करते गए, ऐड करते गए, वो एक आर्टिफिशियली क्या हुआ ग्रोथ कर गया। वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली आज के डेट में टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी डेवलप है, तो वो इंसान के द्वारा है। पहले तो खुदा ने बनाया उस शहर को, उसके बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई, आगे बढ़ते गए एकदम धीरे धीरे। व्हाट वंडर, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू, जो हमारी, क्योंकि गांव की तारीफ कर रहे हैं, फर्स्ट जो है विलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, इनका सेंस पॉइंट का कि व्हाट वंडर, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। देन तब द हेल्थ एंड वर्च्यूज, जो अच्छाइयाँ हैं, जो हेल्दी है, गिफ्ट्स खुदा की तरफ से गिफ्ट है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट, कि ये अकेला जो है ये मिठास ला देता है उस कड़वे सूखे वो कड़वेपन में, कि ये गांव की जो लाइफ है वो जो कड़वापन होता है अगर कोई चीज़, तो गांव की फिजाओं में, हवाओं में, दोस्ती यारों में वो रहते हुए उस कड़वों में भी मिठास ला देता है, और ये खुदा की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। ये बोल रहे हैं ये दैट लाइफ होल्ड आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, ये वो ज़िंदगी है जिसमें हर एक की ज़िंदगी एक दूसरे से बंधी हुई है। दैट मीन्स एक गांव वाले दूसरे गांव को, एक आदमी दूसरे आदमी को अच्छे से बिहेव करते हैं, एकदम नेचुरल बिहेव करते हैं, जो दिल में होते हैं वही चीज़ को बिहेव करते हैं, जो वो, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म पे रहते हैं, कोई बनावटी नहीं होती है। एट लीस्ट बी थ्रेटेन इन द फील्ड एंड ग्रुप, ये बोलते हैं कम से कम जो है एंड लीस्ट बी थ्रेटेन इन द फील्ड एंड ग्रुप, वो लोग क्या है खेतों में जो है खेतें हुआ करती है, खेत खलियान हुआ करते हैं। उसके बाद ग्रुप दैट मीन गड्ढा ये करना, दैट मीन्स वहाँ यहाँ पे सेंस है पोएम के अकॉर्डिंग्स के पेड़ वगैरह, जैसे ऑर्चार्ड होते हैं, हमारे बागीचे हैं, आम के बागीचे हैं, फूलों के बागीचे हैं, गांव में आमतौर पर आपको मिलेंगे। कुछ ही चीज़ को बोलते हैं कि वहाँ खेत खलियानें होती हैं और बागीचे होते हैं, उसका मज़ा कहाँ शहरों में है। पासेज यी, एक वर्ड यी है जो ओल्ड वर्ड है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे यी को देख सकते हैं। ये जो ओल्ड वर्ड है असल में है मॉडर्न वर्ड में यू है ना, ये यू मॉडर्न वर्ड है, ये ओल्ड वर्ड है। पासेज यी, आप उसका जो है ना मालिक हो जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए यू हु बोर्न अबाउट, जहाँ पे जो आपको पैदा की। सही बात है, हम लोग अगर गांव में पैदा होते हैं या जो भी गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पैदा हुए, वहाँ की फिजा, वहाँ की अच्छाई वो बयान कर रहे हैं। इन चैरियट्स एंड सैडन नो फैटिक, ये बोलते हैं जो गांव के लोग हैं जो रथ में सवारी करते हैं, या फिर पालकी का वर्ड एक सैडन वर्ड है, पालकी में जाते हैं, नो फैटिक, जानते हैं कि वो कोई थकावट नहीं है। गांव के लोग बहुत ही मशक्क़त करके खेतों में जाते हैं, इरिगेशन होती, सिंचाई होती खेतों की, या मेहनत और मुशक्क़त करके आप बहुत ही मेहनत करके वो
कुछ काम करते हैं तो वो थकावट फील नहीं करते हैं, वो उनको अच्छा ही समझते हैं कि यही मेरा रोज़गार है। वही चीज़ करते हैं कि शहरों के लोग चेयर में बैठे वो आरामदायक वो समझते हैं कि यही मेरा थकावट है, या थोड़ी कुछ दूर गए थक गए तो उनको लगा यही थकावट। जब गाँव के लोग से कंपेरिजन होता है कि पूरा दिन खेतों में काम करके तब भी वो थकावट फील नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मेरा काम है, तो देखिए क्या डिफरेंस है। यही चीज़ को ये लाइन में बयान करते हैं, क्योंकि वर्ड बहुत इसमें शॉर्ट है लेकिन इनके सेंस और मफहूम काफ़ी बड़ा है। बट दैट ऑफ इल्डनेस, लेकिन वो जो सुस्तीपन एंड स्टेट नो सीन और टेस्ट नो सीन, और वो जो है ना कोई भी वो दिखाता नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा या मुझे बुरा लगा, वो अच्छा समझते हैं वो और कंपेयर करते हैं। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव पासेज यूर स्टिल, ये बोलते हैं कि जो कोई चीज़ पाने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कंट्राइव्स पासेज, और जो उसको उसका मालिक बना देता है। पजेस है, पासेस नॉट पजेस। पजेस मीन्स के कोई चीज़ का जो है आपका स्वामित्व होना, मालिक होना, किसी चीज़ की काबिज हो जाना उस पर। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन, और वही कुछ जो आपके एलिमेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं, जो आपके काम है इन खेतों में बागीचों में घूमना, या फिर मुशक्क़त है, वो जद्दोजहद आपकी मेहनत है, वो आपको चमका देता है, वही है जो आपको शाइनिंग लाता है आपके, और वो आपको निखारता है आगे की ओर। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, और वो जो माइंड है जो आपको, वो सिर्फ वही दिमाग जो आपको सिर्फ ऐसा लगे कि नहीं हमें तो बहुत तकलीफ़ें हो रही है, इतनी मुशक्क़त है, जो शहर वाले सोचते हैं वैसे गाँव वाले नहीं, और उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाता उनकी मेहनत में। आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, ये बोलते हैं कि आवर ग्रुप दैट मीन्स कि हमारे जो बागीचे होते हैं शहरों की देहातों में, कंट्री साइड में, वो क्या करते हैं जो हमारे बागीचे, वो हमें तसल्ली देते हैं जब दोपहर वगैरह में जब गर्मी का मौसम आता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बागीचों में घूमते हैं, उनकी हवाओं में रहते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है। आम के मौसम में जब आम आता है, मैंगो जब होते हैं ना उस टाइप का। द पेंसिव वांडर इन दियर शेड, जब हम तकलीफ में घूमते हैं, जब मूड मेरा उस तरह नहीं होता है, जब हम बिल्कुल मायूस फील करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी छाँव में जाइए, उनको देखिए नेचुरल चीज़ को, हमारे मूड फ्री हो जाता है, फिर अच्छा लगने लगता है। ये बोलते हैं गांव में कि आप कभी तकलीफ में होते बागीचों में जाइए, खेत खलियानों में जाइए, आपको वो नेचुरल फिज़ा मिलेगी, और जो कुदरती हवा है वो चीज़ को हम यूज़ करते हैं। एट इवनिंग दैट मीन्स एट इव here is written the moon being स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, ये बोलते हैं कि जो चांदनी रात जब होती है, एकदम जब रात होने लगती है तो चांद की रोशनी, एकदम चांदनी रात है, वो कितना अच्छा लगता है, एकदम धीरे धीरे जो रोशनी कम होती है और हल्की सी लाइट रहती है, वो कितना अच्छा लगता है गाँव में। स्लीपिंग लिव्स इज ऑल द लाइट द विश, उस वक्त क्या करते हैं, सारे पत्ते भी है एकदम दिखने नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल डिम होने लगता है, क्योंकि लाइट जब दिन से आप डस्ट की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल डाउन की तरफ बढ़ते हैं, डस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। शाम होनी चाहिए है या सुबह का जो अर्ली सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है, वो कैसा लगता है हमें, वो चीज़ को भी ये कर रहे हैं कि लाइट द विश, वो अच्छा लगती है, वो रोशनी अच्छी लगती है। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर, आप बोलते हैं कि कभी कभी बचा हुआ टाइम में हम क्या करते हैं, उसको जो चिड़िए की आवाज़ होती है, जो गाना गाते हैं, दैट मीन्स वार्बलिंग, गाना गाना, चिड़ियों की आवाज़ को ये बोले हैं कि जब पेड़ पौधे होते हैं तो चिड़िए आते हैं, पक्षियाँ आती हैं, परिंदे आते हैं, और वो जो गुनगुनाते चूं चूं की आवाज़, चर्पिंग करते हैं, वो गाना गाते हैं, वो कितना अच्छा लगता है, ये चीज़ को बयान करते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, और यहाँ पे थोड़ा सा ये शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। वी कैन एक्सपेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प द बट एक्लिप्स, ये बोल रहे हैं कि इससे पहले ये गांव की तरफ फोकस कर रहे थे, अब यहाँ से थोड़ा टाउन की तरफ फोकस कर रहे हैं कि आपकी जो ये लाइट है, दैट मीन्स स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, वो जो चमचमाती लाइट है, जैसे ट्यूब लाइट है, इसकी रोशनी, और या फिर जो म्यूजिकल है, जो चिड़ियों की वो आवाज़, और शहर में जो वायलिन वगैरह की आवाज़ है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बट एक्लिप्स जो ग्रहण दैट मीन्स कि कभी सूरज या चांद जो है, कभी रोशनी धीरे हो जाती, कभी ज़्यादा, कभी धीरे, तो उस टाइप की जो म्यूजिकल आजकल में लाइट है, वो ट्विनिंग टाइप की, कभी रेड जलता है, कभी ब्लू, कभी आपको ग्रीन, इस टाइप का, इस लाइट और वो नेचुरल लाइट को कंपेयर की कि बहुत डिफरेंस है शहरों की ये, और ये बनावटी है, आर्टिफिशियल है। आवर सॉफ्ट सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कंफाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स, और एक ही नोट्स में वो बजाते रहते हैं, ये और चिड़ियों की आवाज़ में काफ़ी डिफरेंस है। द थ्रश डेफ scared and the offended nightingale is mute, और ये बोलते हैं कि जब
वहाँ पे गाना गाना बंद होता है, चिड़ियों का शाम होने लगती है, तो फिर क्या होता है कि नाइट एंगल भी म्यूट हो जाते हैं। वो नाइट एंगल भी जो है ना अपने आप को भी साइलेंट कर लेते हैं कि अब हमारा ये काम ये ख़त्म है, अब रात में अब हम भी सोने चले हैं। वो तो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट एक पोएम था हमारा, कंट्री साइड और टाउन को कंपेयर कर रहे थे हमारे राइटर जो विलियम कॉपर है। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम एंड इफ़ I want you request you to if you have any problem related to this poem, you can comment on the comment box and like and share these videos and send it to your friends more and more so that they get more and more benefits by watching it.